हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट्स कितने होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। अगर आप ऑब्जर्व करते हो अपने साइड में, जब भी कुछ देखते हो तो उनका स्टेट क्या है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। हम बोलते हैं कि मैटर जो हमारे एग्जिस्ट है आसपास, वो हमारे 3 स्टेट में है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. These states of matter arise कब होता है? Due to the variation in the characteristics of the particle of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. First, the solid states. ठीक है, एक्टिविटी से समझते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. Scale the shape of the above particles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundary, and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग एक्टिविटीज का। All the above are examples of solid. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundary, and fixed volume. That is, have negligible compressibility. Solid have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape or stretching? आप जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो क्या उसका शेप चेंज होता है? Is it a solid? क्या वो सॉलिड है? What about in sugar and salt? When kept in a different jar, this takes the shape of the jar. Are they solid? क्या वो solid है? What about a sponge? It is a solid. It we are able to compress it. Why? Why? इन सब का आंसर है all the above are solid. रबर हो गया, sugar and salt and sponge सब solid है। A rubber band change shape under force. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कब शेप चेंज करता है, जब हम लोग उसको फोर्स करते हैं। And regains the shape, same shape when the force is removed. If excessive force is applied, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो it breaks, तो ब्रेक हो जाता है। The shape of each individual sugars or salt crystal remains fixed, whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. उनका जो फिक्स होता है, क्रिस्टल का होता है शुगर या सॉल्ट का, वो रिमेन फिक्स होता है, ठीक है। स्पॉन्ज हैज मल्टीपल होल। स्पॉन्ज में क्या होता है, जो हम लोग स्पॉन्ज यूज करते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उसमें होल्स होते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं, उसमें जाके एयर ट्रैप्ड हो जाता है, और जब हम लोग प्रेस करते हैं उसको, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। ओके, नाउ द लिक्विड स्टेट। सेकंड है लिक्विड स्टेट। एक्टिविटीज से समझते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। Containers of different shapes. Put a 50 ml mark on this container using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are split on the floor? जब हम उस लिक्विड को गिरा देंगे फ्लोर पे तो क्या होगा? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it to a different container one by one. Does the value remain the same? आप एक 50 ml का मेजर किए हुए बीकर को दूसरे दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए, क्या वो 50 ml ही रहेगा या कुछ चेंज होगा? वैल्यू रिमेन सेम या उसका चेंज हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन, does the shape of the liquid remains the same? क्या लिक्विड का जो शेप है वो सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? आप जब एक जगह से दूसरे कंटेनर में डालते हो क्या इजीली फ्लो हो सकता है? The answer is that we observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. They, they take the shape of the container. क्या हमने पढ़ा? We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquid flows and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. Refer to the activities 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. This जो अभी वाटर में क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस है और वाटर के साथ मिक्स होकर उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं।
दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कौन से इस गैसेस हैं, स्पेशली ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो भी हमारे वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। ओके, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वाटर में उसके हेल्प से। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, एग्री। The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid, and gases can diffuse into liquid. Okay, solid, liquid, and gases can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to the particle in the solid state. Okay, लिक्विड सॉलिड स्टेट कंपेरिजन में लिक्विड स्टेट में ज़्यादा पार्टिकल्स दूर रहते हैं, डिस्टेंस रहता है, उसके ऊपर ज़्यादा स्पेस रहता है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज गैस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? क्या आपने कभी मेले में या कहीं पे भी आप फेस्टिवल जहाँ होता है वहाँ पे आपने बैलून सेलर को देखा है जो बैलून को फिल करता है गैस सिलेंडर गैस से? कभी आपने पूछा इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर? कभी आपने पूछा है वो कितना एक सिलेंडर से कितना बैलून फिल कर सकता है या फिल करता होगा? आस्क हिम व्हिच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, उससे आप पूछिएगा कभी वो कौन सा गैस यूज करता है उस सिलेंडर में। नाउ एक्टिविटी, टेक 300 ml syringe, 3 1 2 3 मतलब 3 आप 100 ml के 3 syringe लीजिए and close their nozzles by a rubber cock as shown in figure 1.4। figure 1.4 is this ऐसा, ठीक है। रबर कॉक से आप उसको सील कर दीजिए। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द syringes, ठीक है। रिमूव द पिस्टन आप इसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द syringes, leaving one syringe untouched, fill water in the second and the piece of chalk in the third। क्या बोल रहा है, लिविंग वन syringe, आप एक syringe को ऐसे ही रख दीजिए नॉर्मल, सेकेंड वाले को वाटर उसमें डाल दीजिए एंड थर्ड में पीस ऑफ चॉक डाल दीजिए, ठीक है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इन द syringe, आप उसको पिस्टन को syringe करिए, मतलब पिस्टन से उसको प्रेस करिए। यू मे अप्लाई सम वेट, you may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe। आप उसको प्रेस करिए, एक बिना अनटच है मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, सेकंड वाले में वाटर है, थर्ड वाले में पीस ऑफ चॉक है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन व्हिच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन? कौन से केस में पिस्टन इजीली पुश होगा? व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आप क्या उससे सीखते हैं, ठीक है। We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid। हम जानते हैं कि gases highly compressible होता है as compared to solid and liquid। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas। जो हमारे घर में कुकिंग गैस यूज होता है एंड जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में यूज होता है ऑक्सीजन गैस, वो सब कंप्रेस्ड गैस वही सीएनजी गैस है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल, सॉरी वो कंप्रेस्ड गैस होते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल दिस डे इन व्हीकल्स, ठीक है। सीएनजी कहाँ पे यूज होता है? एज अ फ्यूल दिस डे व्हीकल्स में। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering here by the smell that reaches our nostrils। हम अगर किचन से दूर बैठे हैं तो भी हमें पता चलता है किचन में क्या बन रहा है बाय द हाँ उस गैस से। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, वो स्मेल कैसे हमारे पास पहुंचता है? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस अस एंड इवन फर्दर अवे। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के एरोमा गैस के साथ मिक्स होकर हमारे पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेस अस इन अ सेकेंड एज कंपेयर्ड विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। हॉट फूड जल्दी हमारे पास पहुंच जाते हैं, मतलब उसका स्मेल जल्दी पहुंचता है एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैस से द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस, ठीक है।
In the gaseous state, the particle move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particle hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particle per unit area on the wall of the container. ठीक है? Now this is the question. Now 1.4. Can matter change its state? आपने कभी सुना है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड गैस में चेंज हो गया? आई थिंक आपने सुना होगा. लिक्विड वाटर एक ऐसा एग्जांपल है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एंड बहुत सारे ऐसे मैटर हैं. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं. तो हम उसको पढ़ते हैं. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: solid as ice, liquid as a familiar water, and gas as a water vapor. What happens inside the matter during this change of state? क्या होता है मैटर के अंदर, क्या होता है जब ये स्टेट चेंज होता है? तो what happens to the particle of matter during the change of state? How does this change of state takes place? We need answer to these questions, isn't it? First 1.4.1 है effect of change of temperature. Change of temperature. Activity: take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice. आपने beaker लिया, आइस डाला, इसमें आपने थर्मोमीटर ये कर दिया. ठीक है, एक में आपने आइस लेके आप हीट कर रहे हो और एक में आप वाटर लेके हीट कर रहे हो. ठीक है. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट. आइस एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा. स्टार्ट, पूरा मेल्ट नहीं होना है, स्टार्ट मेल्ट. ठीक है. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू आइस water. Record your observation for this conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. Okay? On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particle starts vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particle leave their fixed position and starts moving freely. A state is reached when the solid melts and is converted to liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Melting point क्या होता है? The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. The melting point of ice is 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? आप इसको समझो ऐसे कि आपने आइस लिया, उसको टेम्परेचर दे रहे हो. ठीक है, तो हमारा जो आइस हो रहा है वो धीरे धीरे हीट होके फिर वो क्या हो रहा है, आइस हमारा मेल्ट होगा. जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेल्ट, वही हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, अभी क्या होगा, अभी एक ऐसा टाइम आएगा जब मेल्ट होना चालू करेगा तो हमारा जो टेम्परेचर होगा थर्मोमीटर फिक्स हो जाएगा. अगर टेम्परेचर फिक्स हो गया तो हमारा एनर्जी जा कहाँ रहा है? यू मस्ट हैव, इसका आंसर है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट of melting that temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt, जब तक पूरी ice melt ना हो जाए. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. The heat, अब आंसर है, the heat gets used up in changing the states by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by all without showing any rise in the temperature. क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज होता है वो एनर्जी. ठीक है, टेम्परेचर जो हो रहा है, हीट दे रहे हम लोग, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट. इसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. लेटेंट मतलब क्या होता है, हिडन. द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known latent heat of fusion. क्या होता है, अमाउंट, कितना आप अमाउंट हीट रिक्वायर्ड है किसको, टू चेंज किसको, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट व्हाट प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point पे is known as latent heat of fusion. So particles in water at 0 degree Celsius 273 Kelvin have more energy
as compared to particle in ice at the same temperature. When we start supply heat energy to water, particle starts moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर की बात हो रहा है, ऊपर जो पैराग्राफ है वो आइस की बात हो रहा था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट किसको दे रहे हैं, वाटर को. पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gases. ठीक है, the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. क्या हो रहा है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे स्टार्ट हो, लिक्विड जो हमारा है, वाटर जो है, स्टार्ट हो रहा है बॉइलिंग के लिए, स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. बल्क मतलब क्या, सरफेस नहीं है, बल्क पूरा स्टार्ट से लेके अंदर से लेके पूरा. ठीक है, particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. For water, this temperature is to 373 Kelvin. That is 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अगर आपको केल्विन में चेंज करना है तो उसमें आपको 273 ऐड कर देना है. तो 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 Kelvin. Can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined of latent heat of fusion. क्या वो सेम रहेगा जैसे हमने आप latent heat of vaporization को एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे आपने latent heat of fusion को एक्सप्लेन किया. Particles in steam, that is water vapor, at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट हमने हीट दिया तो लिक्विड स्टेट होगा, लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में कन्वर्ट किया बाई गिविंग हीट. ठीक है, ऐसे गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे कूल करके, एंड लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे कूल करके. So we infer that state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of it. But there is or some that change directly from solid state to gas state and vice versa without changing into liquid state. ठीक है, ये हमारा एक्टिविटी हो गया. ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं. टेक सम कैम्फर और अमोनियम. आप कोई कपूर लेते हैं, कपूर को जब आप हीट करते हैं तो क्या लिक्विड बनता है, नहीं ना. कपूर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है, गैसेस फॉर्म होता है. तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म को चेंज करने को ही हम लोग सप्लीमेशन करते हैं. ठीक है, इसको एक्टिविटी समझते हैं. टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश, पुट एन यूनिटेड फनल ओवर द चाइना डिश, पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर. आपने कपूर को रखा, उसको कैम्फर भी बोलते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर कुछ भी चलेगा. ठीक है, now heat slowly and observe. What do you infer from the above activity? क्या हो रहा है, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. And the direct change मतलब क्या हो रहा है, solid से डायरेक्ट गैस में जाए without changing into liquid, इसको क्या बोलते हैं, sublimation. And the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. अब क्या हो रहा है, and direct change of gas to solid, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हो जाए विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन. ठीक है, नाउ 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. We have already learned that difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. ठीक है, अगर हमारा दो पार्टिकल्स पास पास है तो सॉलिड स्टेट, थोड़ा दूर है तो लिक्विड स्टेट, एंड बहुत दूर है तो गैस स्टेट. ठीक है, वही बोल रहे हैं. What will happen when we start putting pressure and compressor gas? क्या होगा जब हम उसको प्रेशर दें, उसको प्रेस करके कंप्रेस गैस को कंप्रेस करें. ठीक है, enclosed into a cylinder. Will the particles come closer? क्या पार्टिकल एक साथ में आएंगे, पास पास आएंगे. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the states of matter? क्या आप सोचते हो कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, हमने पिस्टन से इसको ये किया और प्रेस किया, यहाँ तक और प्रेस किया. ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर. हमने क्या किया, पार्टिकल्स दूर दूर थे और पास है और एकदम पास पास आ गया. ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर एंड reducing temperature can liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide? क्या आपने solid carbon dioxide के बारे में सुना है? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere. क्या होता है, solid CO2 gets converted directly to gaseous state. ठीक है, on decreasing, अगर हम प्रेशर कर देंगे तो हमारा solid जो होगा वो gaseous state में चेंज होगा. ठीक है, without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. ठीक है, इसीलिए solid carbon dioxide को dry ice बोलते हैं. Thus we can say that pressure and temperature determine the states of substance, whether it will be solid, liquid or gas. ठीक है, solid से अगर liquid जाता है तो
सॉलिड से अगर लिक्विड जा रहा है तो फ्यूजन, लिक्विड से अगर गैस जा रहा है तो वेपराइजेशन, एंड गैस से अगर सॉलिड में जा रहा है तो डिपोजिशन। ऐसे ही हमारा जब लिक्विड से सॉलिड होगा तो सॉलिडिफिकेशन, जब सॉलिड से गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन, एंड गैस से हमारा लिक्विड हो रहा है तो कंडेंसेशन। मेन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा वेपराइजेशन कंडेंसेशन में। जब लिक्विड से गैस बनता है तो वेपराइजेशन, और जब गैस से लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या होगा, जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो फ्यूजन, और जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। ऐसे सॉलिड से जब गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन, एंड गैस से सॉलिड बन रहा है तो डिपोजिशन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छे से। इंटर करूँगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, नाउ यहाँ पे तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और आई होप आप लोग को समझा होगा। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है एक्चुअली, तो आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। इस चैनल में मैं आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, एनसीईआरटी बुक्स हो गया, अच्छे अच्छे बुक्स रीडिंग करूंगा, और अपना जितना एफर्ट्स हो सकता है उतना मैं आप लोग को दूंगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे से रहो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।